Hi guys, we'll be starting with lesson 4, the Indian equity and private funding. Now in this topic, we'll be seeing about getting funded. See, initially you tell me if this guy is there. Let's name him Santosh. Okay? Santosh is a really talented guy. He has invented a product. Okay, this product is about making people younger. Tell me ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं? अगर ये इसका प्रोडक्ट हिट हो गया, everyone can get younger. So obviously बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है. Now with this innovative idea, is a really innovative idea. He goes to a bank. Okay. अब बैंक मैनेजर के पास से जाता है and he says give me a loan and my business is this. बैंक says कि कोई एसेट है क्या, कोई सिक्योरिटी है? इसी ने मेरे पास कुछ नहीं है, खाली मेरे पास में कॉन्फिडेंस है, मेरे पास में मेरा डिग्रीज है, मेरे पास में मेरा एक्सपीरियंस है. व्हाट डू यू थिंक द बैंक विल डू? बैंक विल टेल हिम एक काम करो, ये भी जो तेरा कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और ये सब है लेके तुम बैंक से बाहर निकलो. बैंक विल नॉट फाइनेंस देम. बैंक्स आर कॉल्ड एज द कन्वेंशनल मोड ऑफ फाइनेंसिंग. सो व्हाट हैपेंस, संतोष विल हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ गेटिंग फंडेड. सो इनिशियली देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज VCs, venture capital funds. Have you heard of it? Now every entrepreneur should and must know about this concept. Venture capitals are regulated by VC regulations 1996. ठीक है? ये लोग क्या करते थे? Venture capitals, they used to invest in such businesses. वो लोग ऐसे businesses में invest करते हैं. इनका objective क्या होता है? Higher the risk, higher is the return. This was the concept. Now tell me one thing, will Ambani prefer investing in bank or he will prefer investing in such kind of businesses which if picked up can become the next revolution? These are not yet tried and tested, but they have a potential of a high income. So risky investors who prefer taking calculated risk always prefer investing in such kind of businesses which can be the next Apple, Google, Amazon rather than invest the money in bank FD. क्योंकि अगर ये हिट हो गया ना तो उनको इन्वेस्टमेंट 10-15% नहीं मिलेगा, उनको इन्वेस्टमेंट उनके मल्टीपल्स में मिलेंगे. मल्टीपल्स मतलब क्या? डबल द इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल द इन्वेस्टमेंट, 10 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट, 1000 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट, ऐसा मिल सकता है. अब क्या था, ये जो वेंचर कैपिटल्स थे, दे आर नोन टू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज कंपनी एंड स्टार्टअप्स. दे वर रेगुलेटेड बाय द VC रेगुलेशंस 1996. अब VC रेगुलेशंस के अंदर लिखा था कि ये जो भी फंड्स थे, वेंचर कैपिटल फंड्स, दे वर नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन. सो नॉट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन विथ सेबी. तो पहले क्या था, क्यों ऐसा नहीं रखा था सेबी ने 1996 के अंदर? दे सेड कि इनिशियली कौन ऐसे रिस्की बिजनेसेस में करेगा इन्वेस्ट, लेट इट बी. बट विथ टाइम इट पिक्ड अप एंड इट बिकेम अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट एवेन्यू वे पीपल सेड कि यार थोड़ा हम लोग FD में रखेंगे और थोड़ा रिस्की एसेट्स में रखेंगे. सो देन दे सेड कि एक काम करते, VC रेगुलेशंस को बंद करते हैं. So VC regulation 1996 has been abolished. The reasons for abolishing is the registration was not required with SEBI. It was voluntary registration. So nobody used to get registered and they used to be unregulated. So इसके बदले में एक नया entity बनाया. Instead of VC, they are called as alternative investment fund. अब ये AIF इसको बुलाते हैं,
AIF का कॉन्सेप्ट भी सेम होता है, टू इन्वेस्ट in these kind of risky businesses with the concept of higher risk, higher is the return. This was regulated by AIF regulations 2012 and सबसे important feature, if you want to set up such kind of a fund which will invest in such kind of early stage companies, you will have to be registered with SEBI. So mandatory registration with SEBI. Clear है ना? Understood the concept? So AIF are nothing but VCs, venture capitals. अब ये AIF करता क्या है? AIF invest money. जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा उस कंपनी का नाम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टी कंपनी, बिकॉज इन AIF इज द इन्वेस्टर और वो ये इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. अब टेल मी वन थिंग, तुमको लग रहा है कि तुम ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे कि एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर विल प्रेफर इन्वेस्टिंग इन बैंक FD? जाके तुम किसको भी पूछो, कोई भी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज यू डोंट लाइक टू टेक रिस्क, एपेटाइट ही नहीं है तो, और रिस्क का नॉलेज भी नहीं है, तो वो लोग बैंक FD में ही सेफली रखते हैं. तो AIF में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, AIF में पैसा कहां से आएगा? AIF के अंदर HNIs इन्वेस्ट करते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, और ये लोग कौन होते हैं? योर अंबानीज एंड योर अडानीज, okay, and your Jahangir X, like these people, they invest in AIF. So can you invest in a AIF? Answer is no. You need to be a high net worth individual. Now what do you mean by a high net worth individual? ये लोग को मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं AIF में? 1 करोड़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है. नाउ टेल मी वन थिंग, तुम्हें लग रहा है कोई रिटेल इन्वेस्टर के पास में 1 करोड़ रुपए होगा AIF में डालने के लिए जो फर्दर ऐसे रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? आंसर इज नो. तो किसका रिस्क एपेटाइट होगा? अंबानी खुशी खुशी डाल सकता है, अडानी खुशी खुशी डाल सकता है, टाटास खुशी खुशी डाल सकते हैं, तो बोलते हैं HNIs ही ये सब बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. क्लियर है ना? नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर फ्रॉम द मॉड्यूल. Firstly, as we said, there was this BC regulations 1996. They used to invest in these startups and mid-sized companies. अब ये जो regulations के अंदर registration was not mandatory. SEBI के साथ में बोल रहे थे register करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बाद में SEBI ने notify किया AIF regulations 2012 on 21st May 2012. AIF करता क्या है? ये पूल करता है पैसा, इकट्ठा करता है पैसा फ्रॉम प्राइवेट कैपिटल. तो ये जो भी रहते हैं AIF, दे कैन नॉट गो टू पब्लिक. ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स विल बी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट टू QIB. सो AIF कैन नॉट एवर इशू अ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स. वो लोग प्राइवेटली प्लेस करते हैं HNIs को. प्राइवेटली प्लेस मतलब अंबानी अडानी के पास में जाएंगे, वो लोग के साथ में एक प्लेसमेंट मेमोरेंडम होगा. कैसे? कंपनी को जब पब्लिक को इशू करते तो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू होता है? अगर एक कंपनी इशू कर रही है शेयर्स पब्लिक को, तो कैसे इंटीमेट करेंगे वो लोग अपने बारे में? डिटेल जो दिए रहेंगे, द बेसिक कंटेंट्स, द मोस्ट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द प्रोस्पेक्टिस. नाउ प्रोस्पेक्टिस इज इश्यूड टू पब्लिक. वही जो प्रोस्पेक्टिस पब्लिक इशू में रहता है, यहाँ पे प्राइवेट इशू में हम वही चीज को क्या बुलाएंगे? प्लेसमेंट मेमोरेंडम. प्लेसमेंट मेमोरेंडम विल गिव यू द टर्म्स ऑफ द इशू एंड द डिटेल्स ऑफ द इशू. लेट्स सी. नाउ it will be privately placed to HNIs with a view to invest according to the investment policy. तो प्लेसमेंट मेमोरेंडम में
इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होगा। अब मार्क करो इसको, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले दे कैन आस्क यू व्हाट इज एन AIF, सीधा डेफिनेशन। अब AIF होता क्या है? इट इज अ ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। Rather than going to a bank and procuring investments, I prefer an alternative route where these AIFs will invest in me. They are ready to take the risk. They are ready to share the risk with me. Because they will first, एक देखोगे ना, ICICI वेंचर कैपिटल फंड, वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। तुम्हें अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है ना, तुमको बैंक नहीं, दे विल नॉट इवन लिसन टू यू इफ यू डोंट हैव एसेट्स। But if you go to ICICI Venture Capital Fund, they will study your business plan. They will study who the promoters are. They will look at your track record. And if they find that you have a good track record, they can invest into your business. So out of 10,000 applications, एक या दो select होते हैं, ठीक है? Now, AIF, Alternative Investment Fund, is a fund. It is established in India. अब ये AIF या तो एक कंपनी के फॉर्म में हो सकता है, एक ट्रस्ट के फॉर्म में हो सकता है, एक LLP के फॉर्म में हो सकता है, या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में हो सकता है। अब AIF जैसे क्रिएट हुआ, उसमें से फंड जो होंगे वो पब्लिकली पूल होंगे फ्रॉम द HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। पब्लिक इशू कैन नॉट बी मेड, इट्स प्राइवेटली प्लेस्ड टू द HNIs एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर द SEBI म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस or the SEBI CIS regulations or any other SEBI regulation, because obviously तुम अगर SEBI के म्यूचुअल फंड में रजिस्टर हो गए तो म्यूचुअल फंड्स के लॉज अप्लाई हो जाएंगे, तुम CIS में अप्लाई हो गए तो CIS के रेगुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर तुम और कोई भी इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर बाद में तुम SEBI के साथ में रजिस्टर हो सकते हो एज एन AIF, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी एन AIF। अगर एक फैमिली ट्रस्ट है, ये लोग ने थोड़े एक्सेप्शन दिए, ESOP ट्रस्ट, employee welfare trust, holding company, any special purpose vehicle, securitization company, these will not be considered to be AIF because they are regulated by some other act. अब आता है कॉर्पस। हमेशा फाइनेंस के अंदर जैसे म्यूचुअल फंड का इतना कॉर्पस है, कंपनी का इतना कॉर्पस है, ये ट्रस्ट का इतना कॉर्पस है। कॉर्पस का मतलब क्या होगा? Corpus means the total amounts of funds committed by the investors to the AIF. टोटल कितना पैसा देने की बात हो रही है। नेक्स्ट, डेट फंड। अब तुम जो भी फंड किस चीज का होगा ना, वो उसके आगे बताएंगे। मतलब व्हाट इज अ डेट फंड, तो दे विल से इट इज अ फंड दैट इन्वेस्ट इन डेट रिलेटेड सिक्योरिटीज। हेज फंड क्या होता है, अभी आगे भी देखेंगे। Hedge fund is a fund which invest in complex trading strategies. मतलब ये लोग है ना एक्सट्रीमली रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं मार्केट्स के अंदर, जो डेरिवेटिव्स के अंदर करते हैं। आई रियली लव हेज फंड्स, इवन आई इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स। और एक सेकंड में तुम, एक घंटे के अंदर तुम बहुत पैसा कमा सकते हो, पूरा मार्केट घूम जाता है। तो दे प्ले इन हेजिंग, दे प्ले इन योर options, swap, all those. There are different kinds of straddle, strip. These are all financial terms which these hedge funds are experts of. Then comes is your infrastructure fund. Again, you can see from the name itself, the fund invest. Now, infrastructure fund. This fund invests in infrastructure related aspects and infrastructure related projects. From the name itself you can say. Investee company क्या है? AIF ने जिस entity के अंदर investment किया होगा, it is called as an investee company. Then comes about investable funds. अगर तुम मुझे बताओ, अगर 100 रुपये आए हैं या 100 करोड़ एक AIF में पैसा आया है, तो क्या AIF पूरा 100 करोड़ लगा सकते हैं? इज द एंटायर मनी इन्वेस्टेबल? आंसर इज नो। उनको थोड़ा एक्सपेंसेस निकालने पड़ेंगे, उनके जो नेट एक्सपेंसेस है वो माइनस करोगे तो जो बचेगा वो नेट हो जाएगा। सो योर कॉर्पस, द टोटल मनी दैट यू रेज माइनस द एक्सपेंसेस विल बी योर इन्वेस्टेबल फंड्स। मैनेजर्स, दे मैनेज द फंड्स। SME,
जैसे हम लोग के पास में NSC BSc है, वैसे ही NSC SME एंड BSc SME है। अब इसमें क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं। नॉट ऑल द कंपनीज हैव द turnover and the requirements to be listed on the main board, that is NSC and BSc, तो लोग SME पे रहते हैं। तो ये ऑब्वियसली रिलेटिवली स्मॉलर कंपनीज होंगे। AIF ऐसे SME के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। SME fund, so it is the AIF which invests primarily in unlisted securities in the SME segment. Social venture, कभी कभार क्या होता है, we have seen investors today after becoming really rich, high net worth individuals like Ambani, Tatas, they are always not concerned with returns. They are concerned with returns which also help the society. अगर कुछ भी डैमेजिंग होगा they will say नहीं, हमको इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसे का हमको इतना वो नहीं है, हमारा गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। So let's invest in something where I make goodwill as well as I make money. So AIF which is going to invest in a social entity, maybe being human हो गया, maybe anything for funding research and development, for any kind of environmental change, for maybe these vaccines, pharmaceutical companies, for birth control measures, etc. So they are set up for promoting certain social or solving certain social problems. Social welfare fund, obviously this is a AIF which will invest in social ventures. Next is a sponsor. Now what is a sponsor? Market is important. AIF किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, तो that is he is called as a sponsor. जो कंपनी में प्रमोटर होता है वो यहाँ पे हम लोग बुलाएंगे स्पॉन्सर। एनी पर्सन हु सेट्स अप द AIF इज कॉल्ड एज स्पॉन्सर। अब ये जो स्पॉन्सर है वो पैसे रेज करेगा HNIs के पास से, एंड ही विल इशू यूनिट्स टू दीज इन्वेस्टर्स। दीज यूनिट्स आर द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द AIF। कि बताएंगे कि आपका 10% स्टेक है, इनका 15% स्टेक है, इनका 20% स्टेक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं BC फंड, वेंचर कैपिटल फंड। अब फ्रॉम द नेम आई टोल्ड यू ऑल, जो प्राइमरी जो इनिशियली भी कॉन्सेप्ट था, वेंचर कैपिटल्स यूज्ड टू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज कंपनीज एंड स्टार्टअप कंपनीज एंड इमर्जिंग कंपनीज, दे आर कॉल्ड एज VCs। तो अगर तुम्हारा भी कोई इनोवेटिव बिजनेस है, यू कैन मेक योर बिजनेस प्लान एंड सबमिट इट टू द VCs। वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग इज अ कंपनी which is not listed and is engaged in the business of the following. Now very important from the exam point of view, super duper important, this they have asked also. अब जो AIF होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, एनी ऑफ द 3 कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो 3 कैटेगरी के हो सकते हैं। AIF, they can be of category 1, 2 or 3. बहुत ही सिंपल है, you can mark it as important. First is AIF 1, invest category 1 are AIFs which will invest in SME, small and medium companies, which will invest in early stage companies. They provide seed funding. They will invest in social ventures. Okay. Then AIF category 3 invest in hedge funds. अब ये मेरा फेवरेट है, hedge funds. And you know, in future I was thinking with my friends I'll set up this AIF कैटेगरी 3। ये हेज फंड्स होता क्या है, दे इन्वेस्ट इन कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ओके, इन द मार्केट लाइक डेरिवेटिव्स। नाउ तुम यही समझना कि
FIIs जो होते हैं वो लोग यही हेज फंड्स क्रिएट करते हैं जो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, अब मुझे लग रहा है कि हो सकता है रिलायंस का भाव गिर जाए, तो आई विल टेक अ ऑपोजिट पोजिशन इन निफ्टी. दिस इज कॉल्ड एज हेजिंग. अब ये तुमको बाउंसर गया होगा, अगर बाउंसर गया होगा तो मतलब ये हेज फंड है. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल. अब ये जो चीजें हैं वो अभी अपने को नहीं है, बट आई हैव टॉट दिस इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो, एंड आई इन्वेस्ट पर्सनली ऑल्सो एंड डू ऑल दी स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैडल, स्ट्रिप, ऑप्शन, फ्यूचर्स, कमोडिटी ऑप्शंस, कमोडिटी फ्यूचर्स, currency options, currency futures, all of that. So it's pretty interesting, and I am planning to one day, have a lecture with regard to live trading also. Now let's see, ये हो गया अपना कैटेगरी 1, ये हो गया अपना कैटेगरी 3, और ये दोनों में जो नहीं आया, which is in neither 1 or 3 will be registered under category 2. Can you tell me from the economy point of view, Indian economy point of view, which category is the most important? 1, 2 or 3? 1. So category 1 जो रहता है, इसको गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस दिए हैं. Relaxations are provided. We will see what these relaxations are. They can also be called as angel funds. Now why do we say as angel funds? अभी आगे आएगा. अभी तुम देखो, अगर तुम्हारे बिजनेस में तुमने एक आइडिया सोचा है कि यू विल मेक समथिंग फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर स्कैसिटी है, तुम कुछ बनाओगे, बट तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, बट यू डोंट हैव एनी एसिड्स टू बैक इट अप, नो बैंक विल गिव यू अ लोन. सो व्हाट हैपेंस, यू गो टू दिस इन asset AIF category 1, ठीक है. They will see that it's a social venture. It is a venture which will benefit the society at large, and still at the same time it has a high income potential. So they will invest. अब तुम्हारे लिए ये बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है तुम्हारे फंड के अंदर इज लाइक अ एंजल ओनली. तो यहाँ पे देखोगे, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ एंजल. ठीक है, so he is nothing but an angel for you because he has provided you the seed funding which nobody would do. Not only that, they also provide the seed funding. Very first seed funding क्या होता है, चल भाई तेरे साथ में बैठ के हम लोग आइडिया डेवलप करेंगे. R&D का भी पैसा दे देते हैं ये लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी पैसा दे देंगे. अभी कौन सा इन्वेस्टर इतना पैसा देगा कि R&D का भी, तो थोड़ा बहुत ही बड़ा इनकम स्कोप होगा तो ही जाके ऐसे फंड्स मिलते हैं. Now what is this? Now we are doing the categories of AIF. They invest in early stage companies, SME companies, social ventures, infrastructure sectors. Now they receive a possible positive spillover effect on the economy. Positive स्पिल इफेक्ट मतलब क्या, कि अगर इसको हम लोग ने रोल ओवर कर दिया, इम्प्लीमेंट किया, तो इकोनॉमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इट इज नथिंग बट अ नर्सरी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप वेयर द स्टार्टअप्स आर बीइंग गिवन हैंड होल्डिंग एंड शोन देम हाउ टू ग्रो. सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज एंजल इन्वेस्टर्स एज वेल. नाउ कमिंग टू कैटेगरी 2 which does not fall under 1 and 3 should be registered under category 2. Now category 3, it's my personal favorite. इसमें क्या है कि they invest in complex trading strategies, they invest in derivatives basically. Now for derivatives also I will one day have a live session also on how and trade and show you all how it is. Rather than theoretical, you will see practical. So I will do a straddle, whatever the FII strategies do. It's very simple. It's just that you need to start to understand it. The second, now we are coming to the more compliance part of AIF. मतलब अगर registration करना है तो कैसे करना है.
तो अगर आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू सेट अप अ AIF, सो AIF अगर तुमको सेटअप करना है तो उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है, किसके साथ में? सेबी के साथ में। और मुझे एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया तो वो वैलिड रहेगा। कब तक वैलिड रहेगा? टिल द AIF इज वाउंड अप बाय सेबी। अब ये किधर जानेगा, कहाँ से मिलेगा एप्लीकेशन? तो ये लोग ने ऑलरेडी एक बोला है, वेबसाइट का नाम है और उसका ऑनलाइन फाइलिंग सिस्टम फॉर AIF। अब AIF के लिए अप्लाई करूंगा मैं तो ऑब्वियसली इसके साथ में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे कि मेरी एंटिटी टाइप कौन सी है, एंटिटी टाइप, देन आई विल हैव टू से मेरा कॉर्पस कितना है, मैं खुद प्रमोटर्स कितना लेके आ रहे हैं, वो लोग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ओके, सो वी विल सी व्हाट ऑल अटैचमेंट्स विल गो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तुमको एक और चीज़ देना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिस जो होता है वो पब्लिक इशू के लिए होता है। प्राइवेट इशू के लिए हम लोग उस वही चीज़ को क्या बोलेंगे? प्लेसमेंट मेमोरेंडम। लेट्स सी, ये प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अंदर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताया जाएगा कि ये AIF किधर इन्वेस्ट करेगा। बिकॉज तुम नोटिस करोगे स्ट्रैटेजीज अनलिमिटेड टाइप्स की हो सकती है। अब हम लोग कौन सा स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं, what will it be, whether it is going to be high risk, whether it is going to be medium risk, whether it is going to be in junk bonds, all of that. So वो सब चीज़ों में already it will be told to the HNI कि बॉस देखो हम लोग अर्ली स्टेज कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या हम लोग जंक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, या हम लोग दीज काइंड ऑफ एंटिटीज में हम लोग एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. सो वॉट एवर इज देयर, that strategy has to be disclosed to the placement memorandum. Obviously investors को पता होना चाहिए कि हम लोग जो पैसा दे रहे हैं वो कहाँ पे जाएगा और कैसे इन्वेस्ट होगा और रिटर्न का पोटेंशियल क्या है. Now they can alter the fund strategy also, जैसे हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्सो ऑफ MOA, वैसे तुम प्लेसमेंट मेमोरेंडम का भी जो स्ट्रैटेजी है उसको भी चेंज कर सकते हो, बट कंसेंट चाहिए ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द members. The next, if you are seeing investment in AIF, now again very important. अब maybe you all also like the concept, you all also said कि बहुत ही अच्छा concept है, हम भी investment करेंगे किधर? AIF के अंदर. So let's see. सबसे पहली चीज AIF तुमको सेटअप करना है, one of you all, ठीक है. यू ऑल आर प्रीटी एक्साइटेड, पम्प्ड अप कि यार हम लोग भी AIF सेटअप करेंगे, रजिस्टर करेंगे SIB के साथ में. तो पहले देख लो क्या है, कॉर्पस चाहिए खुद का. सो इन्वेस्टमेंट इन AIF अगर तुम देखोगे एटलीस्ट 20 करोड़ तुम्हारे पास होना चाहिए कॉर्पस, तो जाके तुम सोच सकते हो. तो तुम अभी चाहोगे AIF चालू करना कि तुम बोलोगे 3 साल रुक जाते, जैसे CS कंप्लीट होगा देन हम लोग 20 करोड़ का इंतजाम हो जाएगा, देन वी विल थिंक ऑफ सेटिंग अ AIF. अब ये जो AIF है तुम मिनिमम कितना पैसा ले सकते हो इन्वेस्टर के पास से? नॉट लेस देन 1 करोड़ रुपीज. तो 1 करोड़ रुपए ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तुम्हें लग रहा है तुमको पैसे मिलने वाले हैं नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से? नहीं. ये कौन इन्वेस्ट करता है? AIF और द HNIs. सो दिस इज द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. अब ये जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है इसमें इन्वेस्टर्स होंगे. ये इन्वेस्टर्स होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. ये लोग मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो लोग फर्दर कोई भी ऐसे इन्वेस्टी कंपनीज, ऐसे अच्छी खासी कंपनीज ढूंढेंगे जिसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न हो और फिर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. ज़्यादातर कंपनीज हम लोग ने देखा है इन्वेस्टर्स लूज द मनी मैनी अ टाइम. ये पैंडेमिक में हम लोग ने भी देखा कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए. ठीक है, इन्वेस्टर्स जनरली लूज द मनी, बट 10 में से अगर एक प्रोजेक्ट भी हिट हो गया ना तो ऐसा हिट होता है कि 9 का लॉसेस कवर कर लेता है. नेक्स्ट, अभी स्पॉन्सर का भी कुछ पैसा लगा होना चाहिए कि नहीं?
तो स्पॉन्सर शैल हैव अ कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट ऑफ नॉट लेस देन 2.5% ऑफ द कॉर्पस और 5 करोड़ विच एवर इज लोअर। तो कम से कम जो स्पॉन्सर है, जो प्रमोटर बोलेंगे कंपनी के अंदर, वो यहाँ पे स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर इज द वन हु हैज सेट अप द AIF। तो स्पॉन्सर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट हमेशा 2.5% और 5 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कैटेगरी 3, सिंस इट इज मोर रिस्की, वी विल टेल हिम टू इन्वेस्ट 5% और 10 करोड़ विच एवर इज लोअर। नो स्कीम शैल हैव मोर देन 1000 इन्वेस्टर्स ऑफ AIF। तुम ही सोचो, अगर एक मिनिमम 1 करोड़ दे रहा है, ऐसे 1000 इन्वेस्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो एक मैक्सिमम कितना पैसा रेस कर सकते हैं वो लोग? कहीं ना कहीं अगर देखेंगे सब 1-1 करोड़ दे रहे हैं और ऐसे 1000 इन्वेस्टर्स है तो 1000 करोड़ तक रेस कर सकते हैं वो लोग। अब जो भी फंड्स होंगे वो सब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेस करेंगे। नेक्स्ट, coming to placement memorandum. Placement memorandum is your prospectus. It contains the information and all the material information with respect to the AIF, the promoters, the sponsors, the trustees, the custodians, the terms and conditions, the strategies, the risk management tools. अगर तुम डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या सोच रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तुमको जो सोचना है, रिटर्न से ज़्यादा तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना होता है कि अगर मार्केट रिवर्स में चला गया, जो अपना प्रेडिक्शन के ऑपोजिट चल रहा है, तो मैं कैसे प्रोटेक्टेड रह सकूं। स्टॉप लॉस इज जस्ट वन ऑफ देम। अब आता है ये स्कीम। अब ये स्कीम क्या होता है, यहाँ पे देखो। सबसे पहले तुम्हारा एक स्कीम बनाओगे, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करके, तो किधर डिस्क्लोज होगा? तुम्हारा प्लेसमेंट मेमोरेंडम में। ये प्लेसमेंट मेमोरेंडम में तुम्हें 30 डेज प्रायर टू लॉन्च ऑफ द स्कीम तुमको सेबी को देना है। तो प्रॉस्पेक्टिव जैसे पहले सेबी को फाइल होता है, वैसे ही प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी सेबी को फाइल होगा। फिर सेबी जो भी कमेंट्स या चेंजेस रेकमेंड करेंगे, हमें उसे चेंजेस लेके आने हैं और फिर बाद में हम लोग स्कीम को लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर सीइंग द टेन्योर। टेन्योर क्या है कि ये जो स्कीम होगा कितने टाइम के लिए होगा। सो लेट्स सी, फर्स्ट मिनिमम टेन्योर ऑफ कैटेगरी 1 and 2, 1 and 3 विल बी 3 years. इट शुड बी क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब क्या कि एक फिक्स्ड कॉर्पस होगा, एक सर्टेन अमाउंट हम लोग रेस करेंगे और बंद, फिर नो न्यू इश्यूज विल बी मेड। और जिसको भी सेल करना है वो लोग सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 यूनिट्स रेस किया तो फिर बाद में क्लोज हो जाएगा, बस अभी 100 यूनिट्स ही रहेंगे। वो जब भी उसका वैलिडिटी खत्म होगा तब जाके रीपेमेंट होगा, उसके पहले AIF कुछ पेमेंट नहीं करेगा। तो 3 years के लिए मैंने लॉन्च कर दिया। अब तुम्हें अगर तुम्हारा स्टेक बेचना है तो तुम मार्केट में किसी और को बेच सकते हो। द टेन्योर में बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years विथ अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 2/3। कैटेगरी 2 कैटेगरी 2 में नो मिनिमम टेन्योर प्रिस्क्राइब्ड, इट इज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। तुम चाहिए तो घड़ी घड़ी नए नए इशू लॉन्च कर सकते हो, घड़ी घड़ी बाईबैक भी कर सकते हो। मतलब क्या, मैंने अगर 1000 यूनिट्स इशू किया तो हो सकता है कल मैं और 200 इशू करके 1200 यूनिट्स हो जाए, या फिर मैं सोच रहा हूँ और रिडीम कर लो 300 यूनिट, तो उतना माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ओपन एंडेड रहता है, कम ज़्यादा हो सकता है। क्लोज एंडेड में जो इशू किया बस वही फिक्स कॉर्पस होगा और तुम्हें फिर बेचना रहेगा तो तुम फिर जाके मार्केट में किसी को बेच सकते हो। देन कमिंग टू लिस्टिंग। अब तुम ये चाहो तो लिस्ट भी हो सकता है AIF के यूनिट्स। सेबी AIF रेगुलेशंस 2012। अब ये लोग जो लिस्ट होते हैं उसका अलग ही प्लेटफॉर्म होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ही होगा, प्राइवेट अग्रीमेंट सबके साथ में एंटर करना पड़ता है। अलाउज लिस्टिंग ऑफ द यूनिट्स ऑफ द क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज तुम ही सोचो,
अगर 1000 यूनिट्स इशू हो चुका है तो रिडीम टेन्योर पे ही होगा, मैच्योरिटी पे ही होगा, तो तब तक कि अगर मुझे बेचना हो तो मैं कैसे बेचूं? AIF इज नॉट रेडी टू बाय इट, तो 1000 का 1000 ही रहेगा। तो मैं चाहूं तो मैं लिस्ट करके अपने यूनिट्स को बेच सकता हूं। ओपन कैटेगरी लिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल है, तुम जाके AIF को बेच सकते हो, बायबैक कर सकते हैं AIF, और उसका ट्रेडेबल लॉट भी जो होगा वो मिनिमम 1 करोड़ का होगा। मतलब अगर मैं जाके देखूंगा, अगर मुझे बेचना है तो मिनिमम 1 करोड़ जितना ही बेच सकता हूं मैं, मिनिमम और मल्टीपल्स ऑफ 1 CR। अब जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस मार्क करो, इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या होता है, अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि AIF ने पूल किया फंड्स। पूल किसके पास से करते हैं? जैसे म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से पूल करता है फंड्स, AIF HNIs के पास से पूल करेगा और फिर बाद में उसको इन्वेस्ट करेगा। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट कंडीशंस लगा दी है। क्या क्या कंडीशंस है देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के सर्टेन कंडीशंस। सबसे पहले, दे मे इन्वेस्ट इन कंपनी आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो AIF चाहिए अब्रॉड भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट दे हैव टू टेक परमिशन ऑफ RBI। को इन्वेस्टमेंट बाय स्पॉन्सर शैल नॉट बी ऑन मोर फेवरेबल टर्म्स एंड दोज ऑफर्ड टू AIF। अब क्या मतलब है इसका? अगर ये इन्वेस्टी कंपनी में पैसे डाल रहे हैं AIF, ठीक है, तो इन्वेस्टी कंपनी इनको शेयर्स इशू करेंगे। अब इधर से जो स्पॉन्सर है, ठीक है, स्पॉन्सर भी अलग से, AIF का जो स्पॉन्सर है वो खुद इन्वेस्टी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये खुद यहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, पहले AIF इन्वेस्ट कर रहा है और अलग से मैनेजर या स्पॉन्सर भी इन्वेस्ट कर रहा है। So can you think the sponsor should get privileges and certain kind of benefits? Answer is no. तो जो भी टर्म्स दिए थे AIF को, वही टर्म्स एंड प्राइसिंग पे स्पॉन्सर को इशू कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इशूड एट अ मोर फेवरेबल कंडीशंस देन व्हाट वाज गिवन टू AIF। देन दे शैल इन्वेस्ट नॉट मोर देन 25%, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन वन इन्वेस्टी कंपनी। तो एक कंपनी के अंदर वो लोग 25% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये कैटेगरी 1 एंड 2 का। कैटेगरी 3 में एक कंपनी के अंदर दे शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10%। तो जो भी कॉर्पस है उसका मैक्सिमम वो लोग 10% एक कंपनी में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा कॉर्पस लेके एक के अंदर ही डाल दिया। दे शैल नॉट इन्वेस्ट इन देयर ओन एसोसिएट्स। ओन एसोसिएट्स मतलब प्रमोटर के रिलेटिव, स्पॉन्सर के रिलेटिव, वो सब के अंदर ही डाल दिया। द अनइन्वेस्टेड पोर्शन, अभी जरूरी नहीं कि सब कॉर्पस का पैसा लगा दूं मार्केट में, हो सकता है थोड़ा अनइन्वेस्टेड पोर्शन है तो उसको मैं लिक्विड प्लेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बैंक में रखूंगा, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, ऐसे सब सेफ इन्वेस्टमेंट में डाल सकता हूँ। AIF कैन ऑल्सो एक्ट एज अ नॉमिनेटेड इन्वेस्टर इन अ SME IPO। You've heard of underwriters? Underwriters IPO में होता है। SME के IPO में क्या बोलेंगे उसको? Nominated investors. So they will say that हाँ ठीक है, ये लोग नॉमिनेट किया, ये लोग इतना बाय करेंगे। So AIF can become an investor in SME IPO। अगर AIF के जो यूनिट्स है या शेयर्स है वो लिस्ट हुए हैं ऑन ITP प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा व्हाट इज ITP प्लेटफॉर्म। इट शैल बी डीम दैट इट इज इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनीज। अब ये लोग एक एक कैटेगरी के बारे में स्पेसिफिक, ये जनरल कंडीशंस थे। अब कैटेगरी 1 का ये बता रहे हैं, अब वो लोग कैटेगरी 2 के बारे में बताएंगे बहुत लंबे टाइम बाद, कैटेगरी 2 के बारे में, देन दे विल टॉक अबाउट कैटेगरी 3 investment conditions. Remember I told you there are 3 categories.
अब सबका तुम रीड कर सकते हो, मोर और लेस द पॉइंट्स आर सेम. क्या दिया है इसमें? सबसे पहले अगर कैटेगरी 1 शैल इन्वेस्ट इन इन्वेस्टी कंपनी, दिस कंपनी AIF could be a special purpose vehicle, limited liability partnership, a company, then they may invest in category 1 AIF of the same category. अब ये लोग जो इट शैल नॉट बोरो फंड्स, ये जो कैटेगरी 1 है ये लोग बोरो नहीं कर सकते मनी एक्सेप्ट फॉर मीटिंग टेम्परेरी फंड रिक्वायरमेंट्स. और वो भी रिक्वायरमेंट जो टेम्परेरी फंड बोल रहे हैं, नॉट मोर देन 30 days. शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग पैसे रेज कर सकते हैं, और वो भी 4 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते ऐसा शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करना इन अ ईयर. फिर आता है AIF इन वेंचर कैपिटल फंड. वेंचर कैपिटल फंड आई टोल्ड ऑल, वेयर डू दे इन्वेस्ट? दे इन्वेस्ट एटलीस्ट 2/3 किधर इन्वेस्ट करेंगे? इन SME एक्सचेंज. ओके, और जो बचा 1/3, not more than 1/3 in IPO of shares which are proposed to be listed, debt instrument of venture capital undertakings. ये सब तुम देखोगे, ये सब स्टार्टअप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो एटलीस्ट दैट इज मिनिमम 2/3 should be invested in SME and 1/3 can be invested in IPO etc. तो सबके ऐसे इन्वेस्टमेंट कंडीशन बता दिए. नाउ दे कैन ऑल्सो अपॉइंट अंडर राइटर्स एंड मर्चेंट बैंकर्स टू सब्सक्राइब टू अनसब्सक्राइब पोर्शन. अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. दे विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रेगुलेशन 3 and 3A ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, provided they make a disclosure of the acquisitions and the investment shall be locked in for a period of 1 year from the date of investment. अब क्या होता है, इनसाइड इंफॉर्मेशन अगर तुम ये सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो इट इज अलाउड. यू कैन गिव प्राइस अनडिस्क्लोज प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर ऑल्सो, क्योंकि तब जाके ही वो इन्वेस्ट करेगा कंपनी के अंदर. SME फंड भी वो बात करे, सब जगह देखोगे ना अभी 75% होगा. 75% शुड बी इन्वेस्टेड इन SME सेगमेंट. अब वो लोग वापस अभी बोल रहे कि तुम एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर सकते हो एज अ अंडर राइटर एंड इट विल बी एग्जाम फ्रॉम रेगुलेशन 3(3)A. द फंड शैल डिस्क्लोज द acquisition of the dealing in securities to such due diligence should be done and the investment shall be locked in for a period of 1 year. अब सोशल वेलफेयर फंड भी वापस कितना पैसा, मिनिमम 75% शुड बी इन्वेस्टेड इन सोशल प्रोजेक्ट्स. दे ये जो सोशल वेलफेयर फंड है दे कैन एक्सेप्ट ग्रांट्स ऑल्सो, बट जो ग्रांट्स भी आएगा इट शुड नॉट बी लेस देन 25 lakhs. कम से कम 25 लाख का तो ग्रांट्स आना ही चाहिए. दे कैन इवन गिव ग्रांट्स प्रोवाइडेड अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर इज मेड इन द प्लेसमेंट मेमोरेंडम. अब दे कैन मे एक्सेप्ट म्यूटेड रिटर्न्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टर्स ऑल्सो. अभी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग क्या बोल सकते हैं, ये म्यूटेड रिटर्न्स आप अंदर रखते रहना. वो क्या होता है, मैंने बैंक FD में से जो ऐसे पैसिव इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो आ सकते हैं. नेक्स्ट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी देखोगे 75% शुड बी इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. दे कैन इन्वेस्ट इन दिस सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो इफ इट इज रिलेटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अब कंडीशन 2, अब तुम देखोगे सब कुछ रिपीट होगा. It should be told in the placement memorandum. Funds of category 2 may invest in category 1 and 2 also. They may engage in hedging. और बाकी के सब पॉइंट सेम है. सेम कौन से हो गए, they shall not borrow money except for working capital. They merchant banker को अपॉइंट कर सकते हैं एज अंडर राइटर. They are exempt from regulation 3(3)A of insider trading regulations. Now conditions for category 3 सेम चीज़ें लिखी होगी. They may invest, पहली बात मीनिंग, they invest in complex trading strategies. They may invest in category 1 and 2.
दे मे एंगेज इन लेवरेज, लेवरेज मतलब वो लोग बोरो कर सकते हैं पैसा, ऑन दे हैव टू फॉलो सच ऑपरेशनल गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट एज सेबी विल डायरेक्ट. अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एज एंजल फंड्स. एंजल फंड्स मैंने तुमको बोला था कि इकोनॉमी के लिए बेटर होते हैं, इसके लिए उनको काफ़ी रिलैक्सेशन दिए हैं. देखेंगे पहली बात, AIF होता, एंजल फंड होता क्या है? इट इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ कैटेगरी 1 AIF. AIF में कितनी कैटेगरीज होती है? 3 का फर्स्ट कैटेगरी की ये सब कैटेगरी है, क्योंकि उसके अंदर सोशल वेलफेयर फंड्स होते हैं, SME फंड्स होते हैं, उसमें से ही एक एंजल फंड होगा. मार्क करो, इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन द एग्जाम. नाउ व्हाट इज अ एंजल इन्वेस्टर? एंजल इन्वेस्टर क्या होता है? दे आर पर्सन्स हु आर सीजनड प्लेयर्स इन इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स. वो घड़ी घड़ी वो लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके वो लोग का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होता है. सो दे हैव एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप कम, दे आर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स. तो एंजल इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली very smart business owners. They have a prior experience in investing in startups. They have a net worth of at least 10 crores. फिर फैमिली कनेक्शन क्या होता है? इज ऑब्वियसली so AIF angel fund should not invest in any company in which it has family connection. मतलब स्पॉन्सर रिलेटेड है, उसके रिलेटिव्स ही है, तो उसके अंदर ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, एक्सेट्रा. अब रजिस्ट्रेशन, तो वापस हम लोग सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्या करना चाहिए AIF का? विथ सेबी. अब मार्क करो, इंपॉर्टेंट, इनको क्या रिलैक्सेशन दी है. सबसे पहले जो हम लोग बोल रहे हैं, इनका कॉर्पस कितना होना चाहिए? 5 करोड़. जो नॉर्मल कॉर्पस था वो इससे कम है. एंजल फंड्स कैन बी सेटअप विथ 5 करोड़ कॉर्पस ओनली. They shall accept up to a maximum of 5 years any investment of not less than 25 lakhs. तो नॉर्मली AIFs के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है. इन्वेस्टर हैज टू गिव इन मिनिमम 1 करोड़. तो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है कि 25 lakhs ही दे सकता है. सो मे बी इफ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन AIF, AIF एंजल फंड के अंदर तुम 25 लाख दे सकते हो. उसके अलावा कोई भी फंड होगा ना, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है. इसलिए ये सब में मार्केट ऐड कभी सुना भी नहीं होगा, ना कोई रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में नॉलेज भी होगा. ये सब बड़े लोग का गेम है. स्कीम्स, तो दे में लॉन्च स्कीम सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम सेबी. नो स्कीम शैल हैव मोर देन 200 एंजल इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टमेंट्स बाय एंजल फंड्स. अब ये एंजल फंड्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो वो लोग बोल रहे हैं कोई भी स्टार्टअप कंपनी होगी विच द DIPP हैज़ अप्रूव्ड, या वेंचर कैपिटल होगा, देयर दे कैन इन्वेस्ट. मतलब ये स्टार्टअप देख रहे हैं. उस कंपनी का टर्नओवर, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि एंजल फंड विल इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप मतलब छोटी कंपनी होगी, तो उसका टर्नओवर इज लेस देन 25 करोड़. तो इन्वेस्टी कंपनी छोटी होनी चाहिए. तो अब बोलेंगे कैटेगरी 1, बिकॉज कैटेगरी 1 डील्स इन स्टार्टअप्स. तो टर्न ओवर ऑफ लेस देन 25 करोड़. इट शुड नॉट बी प्रमोटेड बाय, इट शैल नॉट बी प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड बाय एनी इंडस्ट्रियल ग्रुप whose turnover exceeds 300 crore rupees. Angel fund cannot be, you cannot invest in a company which has been promoted by an industrial group. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक नई कंपनी बनाया, अब उस कंपनी का टर्नओवर भी कम है, नई कंपनी है, बट वी विल से बॉस ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टार्टअप है, तो यू कैनॉट कंसिडर टू बी अ स्मॉल कंपनी बिकॉज इट इज स्पॉन्सर्ड और प्रमोटेड बाय अ बिग इंडस्ट्रियल हाउस. दे विल इन्वेस्ट. अब ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय एंजल फंड, इट विल इन्वेस्ट नॉट लेस देन 25 लाख रुपीज एंड नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज. जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो 1 करोड़ 1 ईयर के लिए लॉक इन रहेगा. इट शैल नॉट इन्वेस्ट इन इट्स ओन एसोसिएट्स. अपने ही फैमिली कनेक्शन वालों को पैसा फंडिंग नहीं दे सकते. इट शैल नॉट इन्वेस्ट मोर देन 25% इन वन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग. ऐसा नहीं एक के अंदर ही डाल दो पैसा. एंड इट कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडेड RBI इज गिवन अप्रूवल.
लिस्टिंग शैल नॉट बी लिस्टेड, तो एंजल फंड्स कैन नॉट बी लिस्टेड, तुमको मेंटेन करने पड़ेंगे बुक्स। अब डॉक्यूमेंटेशन, अभी सिंपल सा है डॉक्यूमेंटेशन, रीड भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस है। अगर तुमको लिस्टिंग या अप्रूवल के लिए डालना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दोगे स्टॉक एक्सचेंज को? सबसे पहले तुम प्लेसमेंट मेमोरेंडम दोगे, तुम इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो बना है वो दोगे, ट्रस्टी के बारे में, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्ट डीड के बारे में, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोगे, MOA दोगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होंगे। एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग दोगे। अब आते डिस्क्लोजर्स, तो ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस यू हैव टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड गिव रेगुलर डिस्क्लोजर्स। इफ वी सी नाउ द रेगुलेशंस आर ओवर, जस्ट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स विल बी कमिंग नाउ। पहली बात, सीड फंडिंग। सीड फंडिंग क्या होता है? एकदम स्टार्टअप, मतलब एट द इंक्यूबेटर्स भी बोलते हैं। बच्चे को कैसे अगर 7 मंथ्स का चाइल्ड होता है तो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, लाइफ सपोर्ट पे, तो वैसे ही सीड फंडिंग, एक बिजनेस को सीड फंडिंग देते हैं एट द वेरी स्टार्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। अभी तक बिजनेस चालू ही नहीं हुआ, मैं पैसा देता हूँ, जा बेटा चालू कर बिजनेस। अब ये पैसे से तुम R&D भी कर सकते हो। ये बिजनेस अभी भी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे है, बट ऑब्वियसली दिस इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी भी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आया नहीं है, मतलब अभी तक पता नहीं कि बिजनेस चलेगा या नहीं, बट फिर भी मैंने ट्रस्ट करके दे दिया। प्राइवेट इक्विटी, अब प्राइवेट इक्विटी के ऊपर तुम थोड़ा बहुत गूगल सर्च कर सकते हो जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेडली दिया है। प्राइवेट इक्विटी होता क्या है? फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इट इज अ प्राइवेटली प्लेस्ड into the equity shares. So ये you must have heard of private equity funds. ये private equity funds क्या करते? They invest into the equity shares of the startup companies. So they become your partner kind of a person. They become a shareholder. They will say आप हमको 25% stake दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। So ये generally unlisted companies के अंदर invest करते हैं, private companies में invest करते हैं, and they are basically funding. तो प्राइवेट इक्विटी में हम लोग ने भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं। प्राइवेट इक्विटी में होता क्या है, ये लोग, एक प्राइवेट कंपनी होती है, अब ये प्राइवेट कंपनी के अंदर ये जो प्रमोटर्स रहते हैं वो लोग जाके पिच करते हैं अपना आइडिया प्लान। तो यहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एक पिच करती है, इसको बिजनेस पिच बोलते हैं, पिच प्रिपेयर करते हैं। तुमने शार्क टैंक्स देखा है? तो शार्क टैंक्स में जाके वो लोग जाके इन्वेस्टर्स को बिजनेस पिच करते हैं, और इन्वेस्टर्स को अच्छा लगा तो इन्वेस्टर्स इसमें इक्विटी स्टेक बाय करते हैं, दे बाय अ सर्टेन स्टेक, नथिंग बट शार्क टैंक्स। अब प्राइवेट इक्विटी में वो लोग बोल रहे हैं टाइप्स, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है उसको। एक है लेवरेज बायआउट। लेवरेज बायआउट मतलब क्या? जो इक्विटी इन्वेस्ट इन इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर इक्विटी बाय करता हूँ, ठीक है, और ये जो कर रहे हैं वो हम लोग टिपिकली लोन लेके कर रहे हैं, लेवरेज करके ले रहे हैं। सो आई एम टेकिंग अ लोन एंड इन्वेस्टिंग इनटू योर कंपनी, सो दिस इज कॉल्ड एज अ लेवरेज बाय आउट। सो इट हैज बीन बॉट आउट, द शेयर्स हैव बीन बॉट आउट विद लोन। लेवरेज मीन्स लोन, तो लोन्स के पैसे से मैं इक्विटी शेयर्स बाय कर रहा हूँ। तो काफ़ी बार हम लोग देखते हैं, अगर मुझे कोई कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो थोड़ा बहुत खुद का पैसा लगाता हूँ, बाकी का लोन लेके मैं इन्वेस्ट करता हूँ। Second is venture capital. Venture capital, always remember, it invest in early stage companies. और लास्ट में है ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल क्या होता है? हम लोग ने देखा है कि फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आता है, वो सीड फंडिंग बोल सकते हैं। सीड फंडिंग के बाद में बिजनेस चालू हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग आएगा, विच कैन बी कॉल्ड एज अ ग्रोथ कैपिटल, टू एंटर द प्रोडक्ट इन द न्यूअर मार्केट, टू पेनिट्रेट इन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। अब थर्ड आता है वेंचर कैपिटल। थोड़ा बहुत ये जो भी है सब ऐसे जेनेरिक दिए हुए हैं, ये अभी कोई भी लॉ स्पेसिफिकली नहीं आएगा, जस्ट जनरल कॉन्सेप्ट। तो यू कैन गूगल सर्च ऑल्सो एंड राइट इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट। सो वेंचर कैपिटल्स, दे इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज in the privately held companies with the objective of getting high returns.
अब जो इन्वेस्टमेंट भी होता है वो या तो सीड फंडिंग करोगे, सीड फंडिंग में क्या होता है तुमको R&D का भी पैसा देता है, जाओ ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और कोई मेरे को प्रोडक्ट बना के दो. तो आई हैव सीन वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही हैज़ गॉट दिस सीड फंडिंग. सो इफ़ यू गो एंड सी medicalwale.com और मेडिकल वाले ऐप, माई फ्रेंड अनुज जायसवाल ही गॉट सीड फंडिंग. उसको इन्वेस्टर ने क्या बोला कि ये लो जाओ फंड करो. नाउ विद दैट मनी ही डिड अ रिसर्च, ही अपॉइंटेड इंजीनियर्स and then they develop this medical app, medical wale app, where you can place all your medical medicines and all of that can be ordered. It worked up. So then फिर startup कर देते business after the R&D works out. Then obviously अगर business successful हो गया, then he got many awards. Now it will go into the second round of funding. अब later stages में development capital तुमको expand करना है, तुम्हें दूसरी companies को buy out करना है. तुम notice करोगे Reliance Industries, they are getting money, private equity, they are getting privately placed to Silver Lake, Amazon, Mark Zuckerberg, they have invested to Facebook. So ऐसे करके वो लोग फिर बाद में दूसरे एंटिटीज को बाय आउट करते हैं. रिप्लेसमेंट कैपिटल एंड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज. टर्न अराउंड क्या होता है कि सिक कंपनीज को बाय करके बिजनेस को टर्न अराउंड करेंगे. सो इफ यू हैव सीन वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, उसका जो मेन ओनर है वो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजीज में डील करता था. ही यूज्ड टू बाय जंक बॉन्ड्स. जंक बॉन्ड्स क्या होता है, जिसको BBB माइनस से खराब रेटिंग्स मिली है, वैसी कंपनीज को बाय करता था वो, क्योंकि सस्ता प्राइस मिलता था, रिस्की रहता था, बट वो बाद में कंपनी को सक्सेसफुल करता था बाय रिप्लेसिंग इट्स मैनेजमेंट विद अ गुड मैनेजमेंट. तो ये है सीड फंडिंग. तो R&D का पैसा देते हैं. स्टार्टअप्स में आफ्टर द रिसर्च फंडिंग दे रिक्वायर मनी टू डेवलप द प्रोडक्ट. देन आफ्टर दैट दे कैन कीप गिविंग यू फॉर अट्रैक्टिंग न्यूअर क्लाइंट्स. डेवलपमेंट कैपिटल कैन बी गिवन, एक्सपेंशन, buyouts. Now mark, buyout is important. Buyouts can be management buyouts also. Let's understand. Management buyouts can be two: management buyout और management buy-in. अब सोचो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट रियलाइजेस कि शेयर होल्डर्स को हम लोग पिच करते हैं कि हम लोग आपके शेयर्स बाय कर लेते हैं. The directors, the managers, the employees make a pitch to the shareholders and they acquire their shares in the entire business. It is called as the existing management will buy out the business. अब ये क्यों होता है, कभी कभार शेयर्स का भाव गिरने लगता है and employees realize that their shareholders are trying to sell off the company. So the employee says that please don't sell off the company, you sell it off to us, we'll buy it. So that is called as a management buyout. अगर कोई दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट बाय करता है, आउटसाइड मैनेजमेंट इज बाइंग द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स, इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय इन्स. सो आउटसाइड ग्रुप ऑफ मैनेजर्स ट्राई टू बाय इट. सो दिस इज अ मोर रिस्की देन द मैनेजमेंट बाय आउट, बिकॉज एग्जिस्टिंग, यहाँ पे क्या होता है, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बाय करता है तो उनको बिजनेस के बारे में पता होता है, करंट रिस्क एंड वर्किंग के बारे में. बाहर का मैनेजमेंट होता है तो उनको रिलेटिवली लेस नॉलेज होता है, तो रिस्की होता है. रिप्लेसमेंट कैपिटल क्या होता है, फाइनेंसिंग इज टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द परचेज ऑफ द एग्जिस्टिंग ओनर्स ऑफ द कंपनी. दिस मे बी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट और नीड फॉर पर्सनल फाइनेंस. तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक दूसरे के शेयर्स बाय करते हैं. टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ. वे सिक कंपनीज को टर्न अराउंड करते हैं वो लोग, तो दे इन्वेस्ट इन सिक कंपनीज. लाइक अभी येस बैंक हो गया, येस बैंक में किंगफिशर एयरलाइंस हो गया, जेट एयरवेज हो गया, ये सब को टर्न अराउंड करने के लिए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स दे कैन कम फॉरवर्ड. नाउ फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, फॉरेनर बोलूँगा तो इंडिया में बॉर्न हुए या अब्रॉड. तो वैसे ही अगर मैं फॉरेन वेंचर कैपिटल बोलूंगा तो ये इन्वेस्ट किधर हुए, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट प्लानिंग प्रपोजिंग टू मेक अ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. So they are planning to make an investment in India. They will be registered. They have to be registered with SEBI under the SEBI Foreign Venture Capital Investors Regulations 2000. All foreign venture capital investors have to be registered with SEBI.
उनका इन्वेस्टमेंट कंडीशंस दिया हुआ है कि उनको पूरा स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज करना पड़ेगा. इट कैन इन्वेस्ट इट्स टोटल फंड्स in the venture capital in the following way. It can invest its total funds committed in one venture capital funds or AIF. मतलब जो foreign venture capital fund है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई कंपनी के अंदर, या कोई इंडिया के वेंचर कैपिटल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या AIF के अंदर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली वो AIF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. नाउ ये जो AIF है, जो फॉरेन AIF है, उनका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया लिखा है एटलीस्ट 66% शुड बी इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स. तो फॉरेन से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? कम से कम 66% शुड बी इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स. तो इंडिया के लिए अच्छा है, हमारे स्टार्टअप्स को पैसे हम लोग फंडिंग अवेलेबल करवा रहे हैं. And maximum 33% can be invested in IPO, debt, preferential, and it should disclose its duration of the life cycle of the fund. तो बताएंगे वो फंड कितने टाइम के लिए रहेगा. They have to maintain the records for a period of 8 years. They are under the general obligations of SEBI. It will be monitored. They have to send periodic reports to SEBI, and is required to appoint a branch approved by RBI फॉर ओपनिंग द फॉरेन करेंसी अकाउंट, बिकॉज वो लोग का फॉरेन करेंसी के अंदर पैसे इन्वेस्ट आएंगे. दैट इज इट. देन वी आर डन विद द चैप्टर.